Hello everyone, welcome to Wisdom 360 Live Classes Business Studies Class 11. So today we are going to start a new chapter which is Business Services. Business Services. We have already completed with the chapters like what is business. We have already studied about the forms of business organization and also the types of public business organization, and today we are going to start with the new chapter which is Business Services. Today we will understand that what is services, how many types of services are there, and then we will also try to learn the various services available like that of banking, insurance and many other. Alright. So before starting with the chapter Business Services, let us start with the meaning of business. What is the meaning of business? Business is an economic activity. Business is an economic activity which includes production or procurement of goods and services, sale or exchange of goods and services with the motive to earn profit. Alright, we are very much aware of the definition of business. Now, what do we understand by services? Services, when we say services means something which is intangible in nature. Services are intangible in nature. What does it mean? It means that you cannot actually touch it. You cannot actually see it. But what you can do is you just feel the service. Isn't it? The services are intangible in nature. Also, services like the business are also economic activity. Alright, services are also economic activity. Okay? So, in general, what are services? Services are those activities which satisfy one's need. Alright, and the activities are intangible in nature. Okay? They satisfy what? They satisfy one's needs and one's wants. ठीक है, एक की नीड या वांट पूरी करते हैं. होपफुली इट इज क्लियर. फिर हम आते हैं विद द मीनिंग ऑफ सर्विस. यू कैन सी services are all those economic activity. So from this it is clear that service is also the economic activity. We have also studied about what is economic activity. I would just like to remind you, economic activities are those activities which one performs to earn his livelihood. Alright, those are known as economic activity. So services are all those economic activities that are intangible and imply. Alright, now again services are intangible in nature and imply an interaction to be realized. Now services means that it is an economic activity which is intangible in nature, and it implies what? It implies an interaction realized between service provider and the consumer. Alright, service provider and the consumer. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से बैंकिंग सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जितने भी बैंकर्स होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अस बैंकिंग सर्विसेज. ठीक है. सो दे आर सर्विस प्रोवाइडर एंड व्हाट आर वी आर कंज्यूमर्स. सो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन बैंकर्स एंड कंज्यूमर्स. दैट इंटरेक्शन इज बिकॉज ऑफ सर्विसेज. सो services are those economic activities that are intangible and imply an interaction to be realized between the service provider and the consumer. Hopefully it is clear. So services are the economic activity. Okay? Then they are intangible in nature. Then they realize an interaction between service provider and the consumers. Alright, hopefully it is clear. So this was all about what is service. Okay? You may write it down, and then we will study the features of services. Okay? Just write the definition of service and we will continue with the features of service.
Now coming with the features of service. पहला फीचर इंटैंजिबिलिटी. Intangibility. What does intangibility mean? Intangibility means that you cannot touch the service. ठीक है. So सर्विस का पहला फीचर क्या है कि इंटैंजिबल होती है. इसका मतलब है कि आप सर्विस को टच नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो ये भी आपका एक फीचर हो गया. You may write it down here. It means that service cannot be touched. ठीक है. Services cannot be touched. ठीक है. Services cannot be touched. So most of the times quality of a service cannot be determined before accepting the offer. It means that, suppose for example, if you are going to buy some product, you can see the product, isn't it? You can see the product, you can just know the quality of the product, you can touch it and you can know the quality of the product, and then you can buy the product. Whereas what happens in services, good evening Sweksha, what happens in services is that in services you cannot actually touch the product, touch the service. ठीक है. You cannot actually touch the service like that of a product. ठीक है. तो क्या होता है सर्विस में आपका कि so service cannot be the quality of service cannot be determined before accepting the offer. For example, you cannot tell how a doctor performs until and unless आप उसे ट्रीटमेंट नहीं ले देते हो. सिमिलरली आप ये नहीं बता सकते हो कि कोई भी सलून सर्विस कैसा कर रही है जब तक आप उससे खुद का हेयर कट नहीं लेते हो. ठीक है. या आप उससे खुद कुछ सर्विसेज नहीं ले लेते हो, तब तक आप उसकी क्वालिटी नहीं डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है. तो सर्विसेज में भी आपका ये एक चीज है कि वो इंटैंजिबल है. इसकी वजह से आप जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तब तक आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो उसकी क्वालिटी. ठीक है. गुड इवनिंग देव, आई गेस दिशा इज देयर ना. गुड इवनिंग दिशा. सो ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर. So it means that service cannot be touched. So most of the times quality of a service cannot be determined before accepting the offer. जिन्होंने बाद में ज्वाइन कर रहा है, ओके निष्का, जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा है वो एक बार थोड़ा सा जो 5-6 मिनट की वीडियो रह गई है उससे देख लेंगे तो उनका कवर हो जाएगा. ठीक है. एक ब्रीफ मैं दे रही हूँ. आज हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बिजनेस सर्विसेज. ठीक है. जिसमें मैंने सर्विस की डेफिनेशन डिस्कस करी और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स ऑफ सर्विस. ठीक है. सर्विस क्या होता है? सर्विस जो होता है वो इंटैंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. ठीक है. सर्विस भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और वो इंटैंजिबल इन नेचर होता है. ठीक है. और क्या होता है कि इंटरैक्शन होता है सर्विस की वजह से. सर्विस इम्प्लाइज इंटरैक्शन बिटवीन whom? बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड दी कंज्यूमर. ठीक है. सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में इंटरैक्शन एक रियलाइज करवाता है सर्विस. ठीक है. फिर फीचर्स में हमने पढ़ा कि वो इंटैंजिबल है. इट मीन्स दैट सर्विस कैन नॉट बी टच्ड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम
क्वालिटी ऑफ अ सर्विस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर. ठीक है, यू मे राइट इट डाउन फीचर्स एंड देन राइट इंटेंजिबिलिटी. फिर हम दूसरे फीचर पे आ रहे हैं. इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी क्या होता है? इनकंसिस्टेंसी का मतलब है, अब जैसे कि प्रोडक्ट की तरह सर्विस जो है उसका एक स्टैंडर्ड सर्विस तो होती नहीं है ना. Like every time whenever you are providing the service, every time you have to perform that service again and again. ठीक है, so service when inconsistency का मतलब है कि whenever you are providing a service, every time it should be exclusive. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब सलून सर्विस होती है वो हर कस्टमर के लिए एक्सक्लूसिव होती है. ऐसा तो होता नहीं है. अब जैसे प्रोडक्ट्स में क्या है कि मोबाइल फोन्स, एक जैसे मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस हो गए. ठीक है, फिर कस्टमर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी मोबाइल फोन उन्हें चाहिए वो ले रहे हैं. बट सर्विस में ऐसा क्या है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कुछ है नहीं. तो हर बार जब कोई भी सर्विस टेकर जाता है, या जो भी सर्विस आपका वॉट एवर रिक्रूटर, इसको कह सकते हो आप कंज्यूमर सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं. हर कंज्यूमर के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक्सक्लूसिव सर्विस देनी पड़ेगी. ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ उसी के लिए सर्विस देनी पड़ेगी. ठीक है, तो एवरी टाइम दे हैव टू गिव द एक्सक्लूसिव सर्विस टू एवरी कंज्यूमर और कस्टमर. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ सर्विसेज. यू मे राइट इट डाउन, इनकंसिस्टेंसी. I hope things are clear to you all. Are you getting that we have started the new chapter? Is there any doubt till now? कोई दिक्कत हो रही है किसी भी फीचर में या डेफिनेशन में, समझ नहीं आ रहा हो सर्विस के बारे में कुछ? किसी को कोई दिक्कत? प्लीज लेट मी नो. Okay. So write it down, inconsistency. So as there is no standard service like that of standard product, like that of standard product. ठीक है, so service providers have to provide exclusive service to every customer. ठीक है, मैं राइट इट डाउन. ठीक है,
क्या होता है कि सर्विस, अब जैसे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उन्हें हर एक कंज्यूमर की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप लोग कहीं भी सलून्स जाते होगे या रेस्टोरेंट्स जाते होगे, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई अभी कुछ भी अपना इवेंट करने के लिए कोई भी आप हॉल बुक करते हो, ठीक है, एक लॉन बुक करते हो कोई भी इवेंट के लिए, तो आप अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन बता देते हो, है ना। सिमिलरली जब आप सलून जाते हो तो आप अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन बता देते हो कि मुझे इस तरीके का हेयर कट चाहिए, आपको एक अलग हेयर कट चाहिए, दूसरा जो आ रहा है कस्टमर उसको कोई अलग हेयर कट चाहिए। तो सर्विस प्रोवाइडर को अपनी सर्विसेज ऑल्टर करनी पड़ती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्विस कंज्यूमर्स। ऑलराइट, सर्विस कंज्यूमर्स के हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर्स को, सर्विस रेंडर्स को अपनी सर्विसेज को क्या करना पड़ता है, ऑल्टर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग अगर टेलर की सर्विसेज लेते होगे तो आप अपने कुछ स्पेसिफिकेशन बता देते हो कि आई वॉन्ट दिस स्पेसिफिक डिजाइन ऑन माई ड्रेस, है ना। सो इसी तरीके से अगर आप जैसे डिजाइन क्लोथ्स, अगर डिजाइनर क्लोथ्स लेते हो तो वहां पे भी अपनी स्पेसिफिकेशंस बता देते हो। तो इस तरीके से हर कंज्यूमर अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस बता सकता है कि उसे क्या चाहिए, और सर्विस रेंडर्स को उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी सर्विसेज में नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसा काम नहीं होगा, इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर। दूसरी चीज जो होती है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी इसमें क्या होता है, अब क्या होता है, क्या आप बट इन सम केसेस देयर इज कंसिस्टेंसी लाइक रेलवे। यस, देयर इज कंसिस्टेंसी, बट अगेन रेलवे में भी आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड होती हैं। अब जैसे रेलवे में क्या है कि कुछ लोग जनरल टिकट्स बुक कर रहे हैं, तो कुछ एसी फर्स्ट टायर, देन एसी सेकंड टायर, एसी थर्ड टायर, देन स्लीपर, है ना। तो उसमें भी आप देख रहे हो कि एक ही चीज, एक अब रेलवे में ये नहीं है कि सिर्फ एसी वन टायर है, ठीक है, उसमें भी अलग अलग जितना स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है करा गया, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या अपने हिसाब से, आप अपने बजट के हिसाब से कौन सा उनका कौन सी सर्विस लेते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एयरप्लेन्स, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, है ना, तो एयर सर्विसेज में भी दो क्लासेस हैं, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास। तो इसमें भी दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रही थी, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी भी आपका एक फीचर है। इसमें क्या होता है इनसेपरेबिलिटी में, अब इसमें जैसे प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में आपका सेलर और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, दे आर सेपरेबल इन नेचर। Whereas when we say about service, so service provider and services, they are not separable in nature. क्या मतलब है, मतलब ये है कि अब जैसे डॉक्टर है और डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, तो डॉक्टर के बिना ट्रीटमेंट हो सकता है? डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है क्या वो डॉक्टर के बिना पॉसिबल हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली सलून में जब आप हेयर कट कराने जा रहे हो तो हेयर कट आपकी सर्विस है, और जो आपका हेयर ड्रेसर है वो क्या है, आपका सर्विस रेंडर है, सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो दोनों लोग अलग नहीं हो सकते हैं। सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर इनसेपरेबल है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। होपफुली इट इज क्लियर। अब जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल बैंक्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप बैंकिंग की कोई सर्विस लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोन अवेल करना है, ठीक है, ऑल्दो ऑनलाइन बहुत सी चीजें पॉसिबल है, बट कभी कभी कुछ चीजों के लिए यू नीड टू गो टू फिजिकल बैंक। अब लोन अवेल करने के लिए यू नीड टू फुलफिल certain formalities, like that you need to submit certain documents, you have to sign on some documents। तो इसके लिए तो आपको बैंक जाना ही पड़ता है।
तो क्या होता है, अब जैसे जब बैंकिंग सर्विस है, क्या बैंकिंग सर्विस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस अलग हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। बैंक में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जो बैंकर्स है, वही आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वही आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, इनसेपरेबल है। ठीक है, तो ये भी एक आपका फीचर हो जाता है। राइट इट डाउन, इनसेपरेबिलिटी। बट बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर एप्लीकेबल टू गुड्स टू। हाउ? गुड्स जब है आपने एक सेलर से खरीद लिया, ठीक है, आपने, तो वो सेलर क्या रिप्लेस नहीं हो सकता है? ठीक है, सेलर we have choices in goods, so there is inconsistency. No, you are mixing few points. What I'm trying to say is कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस जो है वो उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। गुड्स और गुड्स प्रोवाइडर को तो सेपरेट कर सकते हो ना आप। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट में जो गुड्स आते हैं आपके पास, तो उसको जिसने प्रोड्यूस करा होगा, क्या वो साथ में आ रहा है? नहीं, प्रोड्यूसर और गुड्स तो अलग अलग चल रहे हैं, है ना। गुड्स, आप गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है, आप प्रोड्यूसर को तो नहीं ले रहे हो। उसी तरीके से सर्विस क्या आप बिना सर्विस प्रोवाइडर के अवेल कर सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, द 2 पॉइंट्स आर डिफरेंट पॉइंट्स। गुड्स के केस में सेपरेबल है, ठीक है, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर सेपरेबल नहीं है। फिर एक फीचर आता है इन्वेंट्री लेस। इन्वेंट्री लेस का मतलब क्या है? अब जैसे गुड्स होते हैं तो आप देखते होंगे, आप एक बार प्रोड्यूस होने के बाद वो गुड्स स्टोर हो जाते हैं फ्यूचर यूज के लिए, इजंट इट? फ्यूचर यूज के लिए वो गुड्स आपके स्टोर हो जाते हैं। बट जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो क्या इट इज पॉसिबल टू स्टोर दी सर्विसेज? नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप फ्यूचर यूज के लिए सर्विस स्टोर करके रख लो। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सर्विसेज जो होती हैं आपकी, दे आर इन्वेंट्री लेस। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, they cannot be stored for future consumption. ठीक है, तो ये भी एक आपका फीचर हो गया कि दे आर इन्वेंट्री लेस। क्यों इन्वेंट्री लेस है? बिकॉज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन लाइक दैट ऑफ गुड्स। ठीक है, सो राइट इट डाउन। ठीक है, फिर एक फीचर आ जाता है इन्वॉल्वमेंट। अब क्या होता है, सर्विस में आपका जो कंज्यूमर होता है वो इन्वॉल्व होता है। वो इन्वॉल्व होता है का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब गुड्स हैं, गुड्स जब प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऑल्दो कस्टमर की नीड्स और वांट्स का सर्वे किया जाता है, जाना जाता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है। पर क्या हम एक एक पर्सन के पास जाके तो उसकी डिमांड पूछ के गुड्स तो बनाते नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो रहा होता है आपका,
जो यहाँ पे आपका किसमें इन्वॉल्वमेंट है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो हर एक पर्सन के हिसाब से, हर एक कस्टमर के हिसाब से मॉडिफाई हो सकती हैं। ओके, सर्विसेज हियर आर मॉडिफाइबल एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, जिसमें अब इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ। इन्वेंट्री लेस का एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। अब जैसे कि रेलवेज के रिगार्डिंग अगर ये चीज दिमाग में आ रही हो कि रेलवे टिकट जो है, वी कैन स्टोर दी रेलवे टिकट। यस, इट इज ट्रू, वी कैन स्टोर दी रेलवे टिकट। कैन यू स्टोर दी रेलवे जर्नी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर दी रेलवे जर्नी। जब आपने टिकट स्टोर करा, ठीक है, आपने टिकट आपने अपने पास रख लिया, टिकट आप कहीं गए थे बाहर, उसका टिकट रखा है, पर जब आप बाहर गए थे तो जिसका जो एक्सपीरियंस आपने रेलवे का लिया है, वो जो रेलवे ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी है, वो आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हो। ये एग्जांपल मैं इससे रिगार्डिंग दे रही हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री लेस में मुझे लगा एक एग्जांपल भी दे देना चाहिए, तो आई एम गिविंग कि इन्वेंट्री लेस का यहाँ पे क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सर्विसेज स्टोर नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, और एक मैंने जो बताया इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या है कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है? कस्टमर अपने हिसाब से सर्विस को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, कस्टमर अपने हिसाब से सर्विसेज को मॉडिफाई कर सकता है। होपफुली इट इज क्लियर। ठीक है, सो राइट डाउन ऑल दी फीचर्स। सारे फीचर्स लिख लिए होंगे। देयर आर 5 फीचर्स वी हैव डिस्कस्ड। राइट ऑल दी फीचर्स and then we will move forward to the difference between goods and services. Coming to the difference between goods and services. Very important, ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। ओके, सो बेसिस जो होता है मीनिंग, सबसे पहले क्या है? मीनिंग। सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सर्विसेज इज द एक्टिविटी और द प्रोसेस। ठीक है, एक्टिविटी और द प्रोसेस, एक्टिविटी और द प्रोसेस। गुड्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर दूसरा जो आता है फिर हमने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था इनसेपरेबिलिटी। सर्विसेज में हमने देखा था कि इनसेपरेबिलिटी इज पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सर्विसेज में हमने क्या देखा था कि सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विसेज आर इनसेपरेबल। तो यहाँ पे लिख लो नॉट पॉसिबल, वेयर एज नॉट पॉसिबल, वेयर एज गुड्स के केसेस में क्या होता है? इट इज पॉसिबल। फिर एक चीज होती नेचर। सर्विसेज का नेचर जो होता है दैट इज हेट्रोजीनियस। क्यों हेट्रोजीनियस होता है? आई टोल्ड यू
कि सर्विसेज में सबके हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग सर्विस होती है, ठीक है, तो इट इज हेट्रोजीनियस। वेयरएज यहाँ पे जो आपका गुड्स का नेचर होता है दैट इज होमोजीनियस, मीन्स कि एक टाइप ऑफ पीपल के लिए एक तरीके का गुड्स आप बना सकते हैं। जैसे अगर हम फोन्स की बात करते हैं तो आप देखते होंगे जितने भी अब जैसे एक टाइप का मॉडल आता है एंड वो कुछ लोग यूज कर रहे हैं, दूसरा मॉडल कुछ लोग यूज कर रहे हैं, तो एक ही मॉडल कई एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो होमोजीनियस गुड्स हो सकते हैं, बट सर्विसेज अक्सर हेट्रोजीनियस होती हैं, ठीक है। आपका हेयर कट आपके फ्रेंड के हेयर कट से अलग होगा, आपकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपके फ्रेंड की अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। तो सलून सर्विसेज जैसे कि अलग अलग हो सकती हैं। सिमिलरली बैंकिंग सर्विसेज भी अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है आपने लॉकर अवेल करा हो, आपके फ्रेंड ने लॉकर नहीं अवेल करा हो, बैंक्स में जो लॉकर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, तो हेट्रोजीनियस होती हैं सर्विसेज, गुड्स आपके होमोजीनियस होते हैं। सर्विसेज में आई टोल्ड यू कि देयर इज इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, हर कस्टमर के लिए अलग सर्विस देनी है, तो सर्विसेज जो होती हैं वो आपकी इनकंसिस्टेंट होती हैं। गुड्स आपके क्या इनकंसिस्टेंट होते हैं? तो नो, दे आर कंसिस्टेंट। एक स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं जो आप अक्सर प्रोड्यूस करते रहते हो, वहीं पे सर्विस आप हर बार बदल बदल के प्रोवाइड करते हो या रेंडर करते हो, ठीक है। Write it down. सर्विसेज क्या इन्वेंट्री लेस होती है? तो आंसर इज यस, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड। नो, गुड्स में क्या हो जाएगा? नो, दे कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, राइट इट डाउन। फिर एक आता है इन्वॉल्वमेंट। अब इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? सर्विसेज में पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, involvement of consumers, services में it is possible and goods में it is not possible। तो इस तरीके से we have studied the difference between product and services, ठीक है, हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस भी देख लिया। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कोई दिक्कत हो रही है किसी को? तो हमने क्या क्या डिफरेंस देखे? हमने देखा पहले तो सर्विस क्या होती है, एक्टिविटी और प्रोसेस होता है। गुड्स क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। फिर हमने क्या देखा, सर्विस में क्या होता है कि हेट्रोजीनियस होता है, whereas goods are homogeneous। Then we saw services में inseparability क्या होती है? इंसेपरेबिलिटी में ये होता है कि आपका सर्विसेज में इंसेपरेबिलिटी इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना। गुड्स में इट इज पॉसिबल। इन्वॉल्वमेंट सर्विसेज में पॉसिबल, गुड्स में नॉट पॉसिबल। किसका इन्वॉल्वमेंट? कंज्यूमर्स का, ठीक है।
फिर हमने एक चीज और देखी, इंसेपरेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट देखा हमने, इनकंसिस्टेंसी देखी। सर्विसेज में आपकी इनकंसिस्टेंसी होती है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं होता, इनकंसिस्टेंसी होती है। गुड्स में आपकी इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है, मतलब कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। देन इन्वेंट्री लेस हमने देखा कि आपके जो सर्विसेज होते हैं वो आपके इन्वेंट्री लेस होते हैं, मतलब दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, और गुड्स आपके दे कैन बी स्टोर्ड। होपफुली इट इज क्लियर। एक बार सारे डिफरेंसेस एक साथ लिख लेना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज में। अब हम टाइप्स ऑफ सर्विस पे आ गए। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, पहला टाइप जो होता है आपका बिजनेस सर्विस होता है। बिजनेस सर्विस, बिजनेस सर्विस में क्या होता है? बिजनेस सर्विस में आपका होता है कि जैसे जो सर्विसेज फॉर द बिजनेस पर्पस होती हैं, मतलब क्या होता है कि जैसे कि बैंकिंग सर्विस हो गई, आपका वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो गए, ठीक है, जो बिजनेस को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। हम लोग ने जो कॉमर्स में पढ़ा था, याद आ रहा होगा, है ना, हमने इंडस्ट्री पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है ये चीज, कि जो एक्टिविटीज हमने दो तरीके की हमने पढ़ा था ना, कि इंडस्ट्री एंड देन कॉमर्स। तो कॉमर्स में हमने पढ़ा था ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमने क्या क्या पढ़ा था? इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउस, है ना, और हमने और भी कुछ चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सब आप एडवर्टीजमेंट जैसे पढ़ा था, तो ये सब क्या है? ये आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, बिजनेस सर्विसेज। एक्टिविटीज विच assist in performing business are known as business services। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल warehouse, insurance, बैंक, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर दूसरी सर्विस कौन सी होती है? सोशल सर्विस। सोशल सर्विस क्या होती है? सोशल सर्विस आपकी वो सर्विसेज होती हैं जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए करते हो, ठीक है। जैसे कि अभी कोविड-19 में अगर कुछ लोग फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी किचन्स जो हैं, जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या होता है? वो आपकी सोशल सर्विस है, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में जो लोग फंस गए हैं उनको फूड प्रोवाइड करना फ्री में, तो दैट इज योर सोशल सर्विस। सिमिलरली अगर आप एनजीओ रन कर रहे हो फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, या आप किसी भी तरीके से आप जैसे पेट एनिमल्स की हेल्प के लिए कोई एनजीओ चला रहे हो, ठीक है, जो भी आपके ऐसी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए, तो ये सब आपका क्या है? दे आर सोशल सर्विसेज, ठीक है। यू आर नॉट ट्राइंग टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट, बट यू आर डूइंग अ सोशल, यू आर फुलफिलिंग योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
बिजनेस सर्विस में आप अपना प्रॉफिट भी अर्न करते हो, जैसे इंश्योरेंस, बिजनेस, ये बैंक, वेयर हाउसेस में आप प्रॉफिट भी, अपना भी प्रॉफिट अर्न करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो सोशल सर्विस, services performed to fulfill social responsibility. All right, so these are your social service. एक टाइप और आ जाता है पर्सनल सर्विस। इसमें क्या है, सर्विसेज विच आर personal in nature, which means that they can be modified as per the requirement. They can be modified as per the requirement of particular customer. अब इसमें आ जाता है आपका क्या, टूरिज्म सर्विस आ गया, ठीक है। टूरिज्म सर्विसेज में भी तो यही होता है, यू कैन मॉडिफाई एज पर योर ओन प्रेफरेंसेस, ठीक है। सलून सर्विसेज आ गया इसमें एग्जांपल। सलून में आप अपने हिसाब से सर्विस ले लेते हो, देखते हो कि पैकेजेस होते हैं उसमें, है ना। तो सिमिलरली टूरिज्म पैकेजेस होते हैं, आप उन पैकेज में से अपने हिसाब से कोई पैकेज चूज कर लेते हो, ठीक है। तो इसमें आपके एग्जांपल्स क्या हो गए, टूरिज्म सर्विसेज, रिक्रिएशनल सर्विसेज, ठीक है, एंड योर सलून सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके पर्सनल सर्विसेज हो गए, ठीक है। अपॉइंटमेंट फ्रॉम डॉक्टर, इट ऑल्सो कम्स अंडर दिस। आप अपने हिसाब से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके पर्सनल सर्विस हो गया। होपफुली इट इज क्लियर। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट what is service, features of service and types of service. Alright, we have studied about service, what is service, features and types of service. जिन्होंने लेट ज्वाइन करा था वो 4-5 मिनट पहले की वीडियो देख लेंगे, उसमें we have discussed about the meaning of service in detail, ठीक है। तो आप डेफिनेशन भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो हमने फिर टाइप्स ऑफ सर्विसेज भी देख लिया और डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस भी देखा था, फीचर्स ऑफ सर्विस भी देखा था, ठीक है। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक विच इज बैंकिंग सर्विस, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, बैंकिंग सर्विस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।